कोई जानकारी नहीं, मुझे पेपर भी नहीं मिले। मैडम एक बात समझ लीजिए, आप क्या हमें नहीं मानो, प्लीज आप या तो वकील करा देते हैं आपको, काउंसिल ट्रायल, आप बीच में बताइए, आप जाके बैठ जाइए पीछे। हाँ। ये फेस वैल्यू का आप लोग क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि आपके पक्षकार की फेस वैल्यू से मुकदमे डिसाइड होंगे? व्हाई यू परमिटेड हर टू स्टैंड हियर? ईदर आस्क हर टू डिस्चार्ज यू, I'll cancel your वकालतनामा and then later address the court. Or don't enter into this dramatics. Otherwise, you will be at receiving end. Please try to understand this. सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आप पक्षकार को लेके क्यों खड़े होते बाजू में? मैंने सर अपने से खड़े हैं वो। तो अपने से खड़े, आपने बोला उनको पीछे आके बैठने के लिए? सर मैं दूसरे पर कैसे बोल सकता हूँ? मेरा वकालतनामा नहीं सर इनके लिए, तो मैं कैसे बोलूँ? इनके लिए आपका वकालतनामा नहीं है? ट्रायल कोर्ट में ही इज द काउंसिल। ट्रायल कोर्ट से वी आर नॉट कंसर्न्ड हियर। यहाँ पे नहीं सर, यहाँ वो हम वकील करा देते हैं लीगल एड से। आप या तो आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लीगल एड से वकील करा देते हैं, और वो वकील साहब को आप ब्रीफ करिए, वो आके बताएंगे कोर्ट में क्या होना है क्या नहीं होना है, और वो समझाएंगे कानूनी पोजीशन हमको। यार रोने गाने से इस कोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। This WP was listed 2-3 days back. My lord wanted to also verify and hear me in the MP, pending MP. MP was linked with first appeal. The MP has come today before my lord. I was to apprise my lord the factual position of what is going on in the trial court. May I kindly come down to the documents filed by my colleague. In MP or in MP. MP. They have filed these documents. Page number 23. Annexure. Annexure is matter R2. They have roughly filed the complete documents. So I am therefore relying on them. R2. R2. This was a suit filed at page number 23. जी मैडम? R2 का पेज नंबर 23, 24 पे आ जाए। हाँ। मतलब प्रतिवादी वहां दो के निष्पादित फोर्थ लाइन 5-7-4 को पंजीकृत, ये पेज नंबर 24 पे ऊपर से 5वीं लाइन जी। निष्पादित 5-4-4 को पंजीकृत सह स्वामित्व विलेख को अवैध शून्य घोषित करने, उसके आधार पर 27-4-8 को रेवेन्यू विलेख में नामांतरण आदेश को अवैध शून्य घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। दिस वाज अ सूट फाइल्ड बाय मी to declare null and void a document executed in favor of Madam Nisha. Now this suit has been dismissed. Kindly appreciate at page number 46. 46 नीचे से चौथी तीसरी लाइन, अवैध शून्य करने के बाद अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है जी। उसके खिलाफ फर्स्ट अपील लगा दी। इसके खिलाफ हमने लगाई माय लॉर्ड फर्स्ट अपील जी। I take my lords to the first appeal. आपकी First appeal at page 49. 49 of the same R3. जी। फिर क्या हुआ फर्स्ट अपील में? First appeal was maintained. Kindly come to para number 11. जी। It was maintained. Para number is the operative part of the order. जी। It is at page number 59. जी। Facts and the case in the light of the legal principle discussed above. We uphold the decree and judgment passed by the trial court. जी। Dismissal is approved. जी। So far approves the transfer by impugned deed in question, and we modified it to the extent that 1 and 2 are only permitted to deal with the property based on their right accruing to them as joint owners. They're all joint owners. And held them along with the owners till the partition is over. They will be deemed to be co-owners with other shareholders property and all rights available to the co-owners. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब एक बार फर्स्ट अपील डिसमिस हो गई, ये डिसमिसल के जजमेंट में ही ये पर आया है। How can that be? अब ये आया है, पोजीशन ऐसी ही है। This can't be changed with this is there, my lord. You being a senior counsel, it could not have been. Make us understand that how such they are obiter, they have no value more than कोई बात नहीं, ये कि नहीं है ना? मेरे को लगता है I leave this here itself. Hereafter, my lord, this decree is a non-executable. भूल गया कि फर्स्ट अपील डिसाइड कर रहा है, सीट पिटीशन डिसाइड नहीं कर रहा है। छोड़ दीजिए इस बात पे, यहीं पे ये इशू बीच में नहीं आएगा। Now, my lord, this judgment kept pending for couple of years, and during that period, civil suit was filed for partition. For partition. Now I take my lords to the civil suit. That is, my lord, at page number 23 of
नहीं सॉरी मैडम, आई जस्ट एक बार गलत बता गया पेज में आपको। इट इज शेयर एट पेज नंबर 90 to 95, जी पेज नंबर 95. जी This was a suit. In this suit, जी because that was only for declaring a document null and void. Therefore, all other members of the family were not included. Here, they have also been included 3 to 6. हाँ ठीक है। There is a difference in between the two हाँ suits. ठीक है। Now, here a decree has been passed ठीक। कि 1/3 को plaintiffs को मिलेगा, 1/3, 1/3, 1/3, जी और डिफेंडेंट को मिलेगा जो 1/3 हुआ एक प्लेंटिफ का, उसके 7 हिस्से होंगे, जी और इनको एक हिस्सा मिलेगा, एक इनकी माँ का हिस्सा भी दे दिया. जी Now both the parties have preferred first appeals. जी They are pending. जी Now this earlier decree, now an execution is filed. The issue starts from here. earlier decree means where the suit was dismissed. Dismissed. Now an execution is filed. I take my lords to the execution proceedings. How can there be an execution of a dismissed? वही मैं बताऊं, that is what I am challenging in this. सीधे to the point आइए ना सर। My lord, पहले बता तो दूं brief है. समझ गए ना? इतना लंबा क्यों? इतना लंबा तो नहीं, मैं थोड़ा सा बताना मेरे लिए आवश्यक था. Otherwise, my lord would have. आप आ रहे हैं क्या? My lord, may kindly just हैं? let me just read. एक मिनट सुन हैं? मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे ना अभी? No, she cries everywhere and gets these orders. She will not. I'll pass the order. अरे प्लीज रुक जाइए ना। इसका मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे पेपर भी नहीं मिले. मैडम एक बात समझ लीजिए, आप क्या है, आपका शुभ नाम क्या है? निशा रिचर्ड. हैं? निशा रिचर्ड. हाँ तो ये बताइएगा कि ये जो जजमेंट एंड डिक्री हुई है, ठीक है ना, इसमें मुझे प्लीज हमें नहीं मालूम, प्लीज आप या तो वकील करा देते हैं आपको, Please, as counsel and trial फिर court. आप बीच में बताइए, आप जाके बैठ जाइए पीछे। हाँ। ये फेस वैल्यू का आप लोग क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि आपके पक्षकार की फेस वैल्यू से यहाँ मुकदमे डिसाइड होंगे? व्हाई यू परमिटेड हर टू स्टैंड हियर? ईदर आस्क हर टू डिस्चार्ज यू, आई विल कैंसिल योर वकालतनामा एंड देन लेट हर एड्रेस द कोर्ट, और डोंट एंटर इनटू दिस ड्रामेटिक्स, अदरवाइज यू विल बी एट रिसीविंग एंड. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज योर गुड नेम? माय नेम शरद पाठक सर. मैंने तो कुछ किया ही नहीं. आप पक्षकार को लेके क्यों खड़े होते हैं बाजू में? मैंने सर अपने से खड़े हैं वो. तो अपने से खड़े, आपने बोला उनको पीछे आके बैठने के लिए? सर मैं दूसरे पर कैसे बोल सकता हूँ? मेरा वकालतनामा नहीं सर इनके लिए, तो मैं कैसे बोलूँ? इनके लिए आपका वकालतनामा नहीं है? Trial court में he is the counsel. ट्रायल कोर्ट से वी आर नॉट कंसर्न्ड हियर. यहाँ पे नहीं सर, यहाँ वो आइए खड़े हो जाइए मैडम. आपको ये बात बताना चाहिए ना, आपका वकालतनामा नहीं है उनके लिए. आपको हम वकील करा देते हैं लीगल एड से. आप या तो आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको लीगल एड से वकील करा देते हैं, और वो वकील साहब को आप ब्रीफ करिए, वो आके बताएंगे कोर्ट में क्या होना है क्या नहीं होना है, और वो समझाएंगे कानूनी पोजीशन हमको. यार रोने गाने से इस कोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है. बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे पेपर दे दे. कौन सा पेपर दे दें? सर जो WP फाइल हुई है उसके पेपर. W पे मैं MP में बहस कर रहा हूँ, तो W पे दे दूंगा. रुक जाइए ना, इनको पेपर दे दीजिए. दे दूंगा WP के, MP की बहस कर रहा हूँ मैं तो. अभी रुक जाइए ना, अभी एग्जीक्यूशन का में चल रहा है, WP में चल रहा है ना. MP में वो दोनों, ये ऑर्डर एक ही MP के हैं, वही तो बताना चाह रहा हूँ मैं. MP में ये MP चली जाए, MP में अगर MP अलाउ हो जाएगी तो दोनों डिसमिस हो जाएंगी. क्या डिसमिस हो जाएंगी? तो WP डिसमिस हो जाएगी. हाँ. अगर MP अलाउ हो जाएगी. MP में आप किसके लिए है? मिस्टर पाठक आपसे पूछ रहे हैं. सर MP में मैं सुनीता और मोनिका की तरफ से हूँ. इनके लिए नहीं है आप? इनके लिए नहीं. इनके लिए नहीं है. ये अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है आपने. आप ट्रायल कोर्ट में है इनके लिए. ट्रायल कोर्ट में मैं सर हाँ ठीक. अब आप बताइएगा, आप ही बता दीजिएगा, ये डिसमिस रिट पिटीशन का वो सूट का एग्जीक्यूशन क्या होता है, थोड़ा समझाइएगा. सर इसके लिए थोड़ा शुरू से बता दूंगा कि डिसमिस सूट का एग्जीक्यूशन कैसे होता है? हाँ बताइए ना प्लीज. इसमें बस आपने जो बात सब सही है, उसमें बस ये बताना चाहता हूँ 55/34 का था रजिस्ट्री में दीवार से लगा हुआ, उसको निरस्त करने का दावा आपने पेश किया था. दावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से निरस्त हो गया. इसके बाद सर इन्हें फिर एक दावा पेश किया जिला न्यायालय सतना में, पार्टीशन का 20/12/23 का. पार्टीशन का मैंने किया था सर. अच्छा. इनने किया था कि ये संयुक्त संपत्ति घोषित कर दी जाए और 15/40 को हम रास्ता घोषित कर दिया जाए. मैंने दावा पेश किया प्रति दावा के साथ इसका विभाजन कर दिया जाए, और विभाजन करके जो ये होटल सिद्धांत से इनको आय मिलती है उसका हमको अंतकालीन लाभ दिया जाए. तो कोर्ट ने इसको दोनों का एक पार्ट स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि ये संयुक्त संपत्ति है, और जो पिछली रजिस्ट्री हुई थी उस रजिस्ट्री को मान्य कर दिया निशा के पक्ष में कि उसको वो हिस्सा भी मिलेगा और जो उसका 1/7 हिस्सा होता है वो भी मिलेगा. तो
2015 का जो था सर, उसके आधार पे मैंने इजराय पेश नहीं किया। हाँ। जो ये नया फैसला हुआ सर, इसमें जो मान्य किया गया पिछला हिस्सा, उसके आधार पे मैंने इजराय पेश किया। बताइएगा। मैं पेज नंबर 98 से मान किसमें, किस केस में देखना है? 58-52 डिग्री पढ़ रहे हैं। डिग्री उसी के आधार पे तो इजराय पेश किया। What he's saying is what I had understood when you were advancing argument that one suit was dismissed, first appeal was dismissed, and there cannot be any execution of this said judgment and decree. He is saying that there is some other decree of which पार्टीशन पार्टीशन के अलावा कह रहे हैं। नहीं, ये पार्टीशन का ही है। डिग्री समझ गया। पढ़ ले। पेज नंबर 98 रिप्लाई के साथ आपके। हाँ जी 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 सर, इसमें लिखा है कि प्रतिवादी क्रमांक 2, प्रतिवादी क्रमांक 1 की मृत्यु हो जाने से विवादित संपत्ति के 1/3 अंश भाग में से 2/7 अंश भाग प्राप्त करने की अधिकारी है। वादी क्रमांक 3 तथा प्रतिवादी क्रमांक 3, 4, 5 व 6 विवादित संपत्ति के 1/3 अंश भाग से 1/7 अंश भाग विभाजन कराकर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। ठीक है। तो इसमें ये हमारा ये सही इसकी ये है 20-12-23। इसी के आधार पे सर हमने ये जो नई डिग्री में हमको पुराना हिस्सा मान्य कर दिया गया। इसके विरुद्ध फर्स्ट अपील पेंडिंग जी, इसके विरुद्ध फर्स्ट अपील पेंडिंग है। फर्स्ट अपील इसके विरुद्ध पेंडिंग है। उसमें स्टे है क्या? नहीं नहीं है तो फिर एग्जीक्यूशन चलेगा। नहीं मैं और अभी नहीं, मैं अभी ऑर्डर पढ़ूंगा ना। पढ़िए ना। Now my lord may kindly just come down to my brother. He was to show the execution. As against showing the execution, he has shown the decree. एग्जीक्यूशन I'll just show my lord the execution filed by them. Kindly come down page 112. 112 along with their reply only. Yes. तो मैं ऑर्डर पढ़ूंगा। 112 पहले देख लेते हैं। जी At G पढ़े। जी They are trying to create confusion. They have done the same thing over there. 36A5 ये पुराना है। एक मिनट रुक जाइएगा। जी मालूम। ऊपर पढ़िएगा सबसे पहले। जी मालूम। ऊपर लिखा है वाद संख्या RCA नंबर सो करेक्ट। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। जी में आ जाए सीधे। जी में आ जाए। डिक्री मध्य शोध रकम यदि कोई ब्याज हो तो उसके द्वारा अंगत संतोष किसी प्रति डिक्री के विशिष्टियों के सहित उस डिक्री की तारीख पूर्व पश्चात पर जो जिसका निष्पादन चाहा गया है, I'll read the answer to the column. How can you seek execution of this 36A? यही मैं ऑर्डर भी पढ़ूंगा अभी। ठीक है, ऑर्डर तो ब्लेंडर है। अरे you correct your application before the trial court. You are right. As far as title is concerned, you are absolutely right. You have a right to seek execution of this decree dated 20-12-2023 because there is no stay from the appellate court. अभी वो भी इससे कैसे नहीं है वो बताता हूँ। नहीं, I am not concerned कि stay कैसे नहीं है। नहीं, ये इसमें एक स्टे पारित हुआ, उसको उन्होंने वहां बता दिया साहब वहां हो गया स्टे। नहीं, मैं से पहले इतनी सी बात है कि 20-12-23 का तो आप एग्जीक्यूशन सीख कर सकते हैं, बट अन्य जजमेंट एंड डिग्री का एग्जीक्यूशन कैसे सीख करेंगे? Either you give your undertaking that you will amend your application before the trial court and will seek execution of only judgment dated 20-12, judgment and decree dated 20 or 23, whatever it is, 12-23. I'll dismiss this petition. आप undertaking दे रहे हैं? So this order has to go. This order is very important. हाँ ठीक है, order will go, definitely order will go. लिखिएगा 65.3 million.